Hello and welcome. Hello and welcome to the live session of Interaction with Pharma Professionals. Foremost, I express heartfelt thanks to the people on the front line who go to work despite of risk, despite of lockdown, while every one of us shelters and work from home. I want to salute pharmacists, doctors, administrative officers, government officials who are wholeheartedly working to serve the nation and save the lives of people. I salute those people. To our special live session series, the series where we bring you pharma stalwarts face to face with live and young viewers remaining and burgeoning with questions. The guest today is in the interaction is a pharma icon and a living legend of pharma profession. Not just because he is a man of pharmacy, but he is a man of profession who has actually crossed all the flamboyance, success, and he everyone has known him as a true mentor. You already know whom I am talking about. Somebody who everyone likes because of its true mentorship. He inspires his fellow colleagues and nurtures his students and people around and far from him. So, I am inspired and motivated by true mentor and bestowed by his blessing always and today by his gracious presence. I Hello everyone. wholeheartedly Yes, I wholeheartedly welcome Professor Dr. Shailin Saraf sir, Vice President Pharmacy Council of India. Welcome, sir. Hello. Sapna, finally you succeed. Now you are successful taking my Viva. Sir, this is Thank my you. bio. In fact, I believe. So thank you for Sir, inviting me and all the viewers. Very good evening, warm evening, and my salute to all the warriors who are really contesting to save our country, and looking forward to have interaction. Thank you. yes. Sir, COVID 19, I believe, is accounted for thousands and millions of lives and it will affect millions of people who will survive. They will the time to mourn for the victims and time to care for the survivors. But today, in these circumstances, we have to recognize and thanks some heroes who have emerged so far. Now, I will just come to today's theme that is modern era of pharmaceutical education in India. Sir, you know that everyone's inspired, like you are our inspiration before joining BR Nahata College of Pharmacy. I just want to know what is your inspiration before joining pharmacy profession. Sir, please. Yeah, thank you, Sapna. I'm really today happy that I produced some true leaders who are full grown. It's the most satisfying for a teacher. When I took admission in pharmacy, it was the 1980s, and time was different. Society was entirely different. You cannot imagine. At that time, opportunities are very less, and being born in Sagar city, there is a Sagar University, and everybody has a connection with Sagar University in the family. So whenever they are talking very high about of geology and pharmaceutical sciences. And only problem was number of seats were very limited, 28 seats in pharmacy, and more than 20 state of the country represented in those days in the pharmacy department. So it attracts us a lot. So we simply appeared in the examinations, and we thought this is the greatest program and it's available in pharmacy, and national level test was there. So and so that linked with the social work and healthcare system. So we took admission in pharmacy, and we are thankful to God that He has given right direction to join this profession.
Definitely, sir. Your inspiration and your success is, in fact, an inspiration and motivation for all of us. Sir, with due respect, please enlighten all the viewers about the journey of pharma professions or pharma education in India and, in your views, whether pharma profession has actually stepped in modern era. Yes, exactly. I'll give a second, first, last question, your last part of question later. The pharma education conventionally started 1937 in PHU. Those was established 1932 with some technical degree. But it's a full-fledged pharmacy degree in pharmacy in 1937. And then it was around 10 colleges that it took 26 years to grow to 10 colleges in the country. And there were good colleges in Chandigarh, then Vishakhapatnam, Nagpur, Sagar, Mumbai, IIT Mumbai, and all such institutions were grown. And then the growth was very slow, and the mandate given to the academic institution was entirely different. It was the need of the hour, and I have no hesitation to mention that the formal education was driven by the circumstances till 2015, I can say, because whatever requirement was there, we are just getting the needs. And at that time, when we got independence, so availability of gas was a problem, affordability was a problem. So the mandate was given to the Indian leaders to make our own indigenous product. And for your surprise, first formulation was prepared in India was here in 1950, and that too only sugar was indigenous. It took around another 20 years to make indigenous 100% indigenous tablet in this country. And after 30 years growth, everybody is known anywhere in the world, everybody taking in the third tablet is manufactured in India. This is the growth we have achieved. So mandate to the academician was given, and we have come to this particular level. Up to 1984, it was in 1880 or 84, I can say, there were only 37 institutions. Now it is totally changed. But you are talking about a modern era, and this is very near to my heart. And we are living in a time when everybody is talking about AC and PC. After Corona, before Corona, so pharmacy it is 100% applicable. I'm considering 2020 as a digital divide. Why digital divide? This is the one single reason is the Supreme Court decision AICT versus PCI in March 2020, because this pharmacy profession was a victim of dual regulation. And if you can say there was a problem of crisis, and we have certain problems. So now we have come out of this, and so that's why this is the time of before crisis and after crisis. So now we are in the new era, and I can say there are challenges, and where are the challenges? So we have to put our efforts, and we will be able to achieve everything in this new era. Definitely, sir. You have just shared the 3 decades information about the journey of pharmaceutical education, and I hope the best will just shift to a digital world and prove ourselves best. Sir, recently through media and websites of regulatory body, it was highlighted that pharmacy education is flourishing as compared to technical education just because of significant role of pharmacy profession in healthcare team, regulatory bodies and pharmaceutical industries. Can you please give statistical information about the status of pharmacy courses with respect to number of pharmacy institution, seat intake of D Farm, B Farm and M Farm, number of registered pharmacists? Kindly share your insights about it. Sapna, I forget to mention my disclaimer. As you have mentioned, I might have mentioned my introduction. I am also holding position of Vice President Pharmacy Council of India, and I am professor of a university. So these are the views. Whatever I am discussing with you are the personal views, and there's no conflict of interest. So, and whatever data I am sharing with you, this is available on websites also. This is in public domain. So if you're talking about pharmacy institutions in the country at present, so we have total, we can say 3,022 institutions imparting BPharm courses, degree course. This is 4-year course,
and this is intake capacity of 1,80,770 per year. And if you're talking about just this about the diploma and degree, this is 1,961 institutions, and this total intake is 1,25,524. And at the same time, we have formed 267 formed institutions with an intake of 2,000 and 8,014 seats, and 792 institutions offering the MPharm course. And another course, this is pharmacy practice, 31 institutions offering roughly 1,200 intake capacity there for those students also. And one most important thing is when the central government asked for the data from the PCI, so we have submitted old data. And as per this data, this total number of registered pharmacists is 11,99,518. And whenever it is we can say collected again, it must be over 50 lakhs. So we can proud to have this sense of pride in our hearts that we belongs to a club, million club, and we have sufficient manpower, trained manpower to cater the needs of the healthcare system in this country. Definitely, sir. We are proud of our profession, and really, people will be proud of the profession in the future also. Thank you for sharing your insights and the status, seat intake, and detailed information. Sir, today's viewer, most probably they are the group of audience which are pharma students, pharma academicians, and pharma industrial professionals, as well as pharma government officials. So please throw a light on future direction of pharmacy profession in India with respect to recognition and career opportunities. Actually, Pharmacy Council of India this underlined this particular aspect long back, and we have brought a practice regulation because earlier pharmacists were not sufficient in number, so this profession was known. But now we are stage two, and believe me, this COVID-19 has given a great recognition to pharmacists, their existence, and their proposed contribution to society. Only thing we have to now think about the competence development, and we have to work about the to increase the visibility of our services. We have to develop the competence. Whatever facet whatever facet we are working, whether we are working in community pharmacy, health hospitals, or retail stores. So we have to show the competence, and we have to deliver as a pharmacist. And if we are able to do it, we must recognize and we must command the respect in the society in years to come. Definitely, sir. Inspiration and aspiration should be always high so that you Yeah. can gain all the flamboyance and success in your life. Exactly. The Definitely, mandate I was totally given to agree with you, sir. yeah, mandate was given to cater the needs of the industry, so we have achieved the laurels to the country. Now this shift is towards bad side training, and there are certain opportunities are created, and this is going to become a big manufacturing hub for medical devices also. All that, so we will again bring laurels to this country and profession. Definitely, sir. Definitely. Sir, now coming to some about your college days, sir. I want to know about your college days. Like we were in college, it was very inspirational for us. We just see your office. I still remember your office, and we were inspired to enter Bian Hata College of Pharmacy. And then that's a sort of spirit still we feel when we enter into the college. There are memorable days with our friends. We enjoyed a lot. We learned from teachers. Sometimes we had bashings also from the teachers. I just want to ask you, sir, please tell about your memorable and unforgettable events of your college day. Very difficult question because I believe the JNT must be from different age group and professions. Still, I will mention one important thing. My entry in the education line was higher education was very remembering remarkable. Uh, I have mentioned in 80s when I completed my schooling, I got admission in agriculture, then diploma in and some other courses in pharmacy and geology. My father was at that time head of the department in one of the department of Saga University Anthropology, and that department is next to pharmacy.
I asked my father where I have to join. He said, किसको पढ़ना है? उस जमाने की जो रिस्पेक्ट और जो दबंगाई होती थी उसको हम अभी आज भी याद कर पाते हैं। तो मैंने सोचा पढ़ना तो हमें ही है। देन ही सेड टेक अ डिसीजन। और आप लोगों के सरप्राइज के लिए जो मजे की बात यह है कि मैंने डिसीजन लिया कि मैं जियोलॉजी पढ़ूंगा। और जियोलॉजी पढ़ने की बात में कारण ये था कि दो बेस्ट डिपार्टमेंट्स थे, दोनों अच्छे रिकॉग्नाइज थे, लेकिन सारे हमारे जो फ्रेंड्स थे उनको जियोलॉजी में एडमिशन मिला था। तो आई टुक एडमिशन इन जियोलॉजी। एक साल पूरा खत्म करने के बाद में ये रियलाइज हुआ कि आई हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन। और उस समय के लिए हम लोग अपना सोचते भी रहे कि फादर शायद हमें एक बार सही डिसीजन दे देते, लेकिन नहीं, हमने कोई डिसीजन लिया। एक साल बाद हमने फार्मेसी ज्वाइन किया, फिर से फार्मेसी टेस्ट में बैठा, फिर नेशनल लेवल के टेस्ट हुआ। नेक्स्ट टाइम आई वाज देयर इन द वेटिंग लिस्ट और उस समय आया। तो इस तरह से हमारा एजुकेशन जो है, जो एंड की हुई हायर एजुकेशन में बड़ी मजेदार हुई। और आज भी याद करके हम उसको हमेशा खुश होते हैं कि चलो ठीक रहा, दे रहा है दुरुस्त है, हम अच्छे प्रोफेशन में है, भगवान ने हमें अच्छा एक रास्ता दिया। डेफिनेटली सर, मैं फिर से नरेट करना चाहूंगी, दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन डेफिनेटली जूलॉजी से फार्मेसी, इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग थिंग कि आप उस समय फार्मेसी में आए सर, तभी तो हमें आप मिले, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। This is for me डेफिनेटली also. बहुत अच्छा डिसीजन था सर आपका, विच इज रियली having a, basically it will help whole mankind, I can say that, and pharmacy profession at least. Sir, coming to the next very very serious question, that world is facing this global pandemic COVID-19. Pharma professionals, as a pharmacist, hospital pharmacist, and community pharmacist, are playing a very vital role in healthcare team. Globally, their efforts are remarkably appreciated by one and all. Sir, please enlighten your views on noteworthy contributions of pharmacists as a healthcare profession. Instead of playing such a dynamic role, still this profession is not recognized position for healthcare team. So kindly elaborate and throw some light on it. As I had mentioned, the pharmacy profession is started late in this country, so the number was not sufficient. So people were not recognizing. But I can say this COVID-19, whatever you say, it's a pandemic and whatever. This is the thing which brought pharmacists in the main front line. And wherever pharmacists are working, they are just commanding the respect. And there is nobody can give you respect by notification of a gadget notification. Only respect can be commanded. And I can say with authority that all the pharmacists and working in different organizations, they are commanding respect. Even the academic institutions, they are coming out with their small skill set, and they are preparing hand sanitizers. They are sending students, and they are through electronic media. They are this sensing this sending the sense we can say messages, how to be preventive, how to stay at home, what is the precautions, how to do medications. So pharmacists are playing their roles, and it's very early to expect the official recognition from different bodies. But as far as the society concerned, yes, we won the war. Definitely, sir, it is well said that work hard in your silence, and success will definitely have a huge noise. Definitely, Yes. sir. I agree with you, sir. Now, sir, this education institutes are facing lockdown due to this COVID-19. Faculties are, I just see faculties are speaking and having an interaction that they are facing trouble about the accomplishment of course of students. They are little worried about their practical and theory aspects. So can you please guide them how to use this digital learning module? These faculties are not, I think, sir, many of them are enriched, but still few of them are not enriched with digital technology for conveying the content and give the brief overview to the students. Sir, can you share some views or give some directives to this faculties? You are absolutely wrong that teachers are not competent. Teachers are competent. That's why a competent interviewer is sitting in just in front of me.
So this is up to the what task what is given to the teachers. They always do it. One more important thing, this is a common practice in the society nowadays. Whatever is bad, institutions are responsible and teachers are responsible. But let me say this is the institutions are simple reflection of the society. मैं आपको दो उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि टीचर्स जो एक अब्राहम लिंकन ने अपने जो बच्चे को एडमिशन कराया था तो उन्होंने उसको एक चिट्ठी लिखी थी, एक पत्र लिखा था और लिखा था कि आई एम सेंडिंग माय सन टू स्टडी इन योर स्कूल but ensure that he is not enjoying any privilege of being a son of the president of the US. और यदि उसके बाद में आप ज्ञान लेके भेजते हैं किसी भी कास्ट को तो हम आपके लिए थैंकफुल रहेंगे. What is happening nowadays in the society? Whenever I'm interacting with the different principals and I ask them what are the opinion, what is the because the feedback of the parents, तो उनका कहना है पेरेंट्स एक तो कम आते हैं और जो आते हैं वो कहते हैं कि हम बच्चे को एडमिशन करा दिया है, वो आएगा नहीं और आप उसको एग्जाम में बैठ देते हैं. कुछ पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि उसको पास करा दें और तीसरे पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि उसकी नौकरी लगा दें. तो यदि हम अपना जो ओरिजिनल जो यूनिवर्सिटी का और जो इंस्टीट्यूशन का एक कॉन्सेप्ट को यदि हम देखें तो इसका जो है कि इंस्टीट्यूशन का एग्जिस्टेंस था वो तो नॉलेज के लिए और उसके लिए जो नौकरी और डिग्री एक बाई प्रोडक्ट हुआ करते थे. लेकिन एक चलन चल पड़ा है एक हमने वेस्ट को कॉपी करने के चक्कर में कि ऑल दी एवरीवन इन द सोसाइटी दे आर मोर फोकस्ड अबाउट द बाई प्रोडक्ट रादर देन प्रोडक्ट. दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द नॉलेज. सो व्हेन वी हैव responsibility to teach the students, we have simultaneously responsibility to teach the society as well. देखो बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी हमारे पास आई है. और जहां तक कि आपने बोला कि वो प्लेटफॉर्म पे नहीं जा पाएंगे, तो मेरा कहना है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो पेंडेमिक है, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हर युग में आती है और उसको गुजर जाने के बाद में लोग अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं कि मैं उस समय था. क्योंकि ये ऐसी गतिविधियां होती हैं, ऐसे पेंडेमिक ऐसे इवेंट होते हैं जो समाज में जनरेशनल चेंज लाते हैं. इंक्रीमेंटल और ट्रांजिशनल चेंज नहीं. हमें लग रहा कि ट्रांजिशनल फेज है, लेकिन नहीं, ये एक समय है जहां हम एक जनरेशनल चेंज को हम अडॉप्ट करने वाले हैं. और जहां तक रही बात जो टीचिंग लर्निंग की, तो हर टीचर स्मार्टफोन रखता है. एक माइंडसेट होता है कि हम एक वी ऑलवेज लव टू स्टे इन द कंफर्ट जोन, सो वी आर स्टेइंग इन द कंफर्ट जोन इंक्लूडिंग मी. बट व्हेनेवर देयर इज नीड, we are quite capable to transform ourselves from comfort zone to stress zone and deliver what is expected from us. I salute the teachers and at the same time I salute them for being a teacher because this is the noblest profession. और उसके बाद एक चीज और है कि हम एक सबसे अच्छे प्रोफेशन में है, वो भी हेल्थ केयर में है. तो हमें एक जो दिस इज टाइम टू बर्न द स्पिरिट ऑफ प्राइड, में अपने दिमाग हृदय में एक आत्मगौरव का भाव जागृत करने का मौका भी है सभी शिक्षकों को कि हम समझें कि हम एक हेल्थ केयर में हैं और हम शिक्षक हैं. डेफिनेटली सर, ये जो आप बोलते हैं ना सर, कई बार आपसे सुनते हैं, आप बोलते हैं, यही आपके वर्ड्स जो है हमको मोटिवेट और इंस्पायर करते हैं सर, और एक प्राइड फील कराते हैं. आपने बोला गौरव, व्हेनेवर वी स्पीक हिंदी, तो हिंदी में जो फ्लरिशमेंट है सर, वो अंग्रेजी में नहीं है. तो डेफिनेटली वो जो गौरव फील कराते हैं कि वी आर इन फार्मेसी प्रोफेशन, यस वी आर टीचर्स, yes we are mentors, and we have blessed to have mentors like you sir. एक Thank चीज you और very much. समझना है कि हम भी गौरवान्वित हैं कि आप जैसे स्टूडेंट हैं, इतने सक्षम होकर बैठे आज इंटरव्यू कर रहे हैं. हम एक चीज और बोलेंगे कि इंडिया इज अ विक्टिम ऑफ नैरेटिव ऑफ द बेस्ट. हमें क्या है कि हमें नैरेटिव बीच में दे दिया, हमें सिखा दिया कि हम पिछड़े हैं. एक साउथ अफ्रीका में एक फ्रेज है, उसमें वो कहते हैं कि until the lion learn to tell his own story, the history of hunt will always glorify the hunters. तो ये वो समय आ गया है कि हम दूसरों के लिखे हुए नैरेटिव्स पे नहीं, हम अपने नैरेटिव्स खुद लिख सकें. और इस तरह के नैरेटिव्स लिखने के लिए ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है कि जब हम कोविड में अंदर बैठे हैं, हम घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन अंदर झांकने का मौका मिल रहा है. और everyone is a unique creature of the God, and we have got unique we can say characters. So this is time जब आप अपने आप को रीइन्वेंट कर पाएं, अपने आप को कॉम्पिटेंट बना सकें और डिलीवर कर सकें. तो ये पेंडेमिक एक नुकसान नहीं है, एक बहुत बड़ा फायदा देके हमें जा रहा है.
Definitely, sir. To be in a Rome, be a Roman. ठीक है. Sir, what do you consider? Who do you consider a role model, teacher, or leader, sir? Uh, I believe teacher or leader, but leader is a different breed. But for me, if you talk, one is we can say role model teacher is there, and one role model we can say leader is also there. I have opportunity. I can say the Pharmacy Council of India totally evolved in the last 15 years, and I was fortunate that I'm there, and that too I am working with Professor B. Suresh, and he is a true mentor, but he is a teacher also. But as far as teacher is concerned, Dr. Dikshit is a teacher and role model for me, and Professor B. Suresh is a leader and mentor for me. एंड उनकी मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ. ही इज वेरी मतलब एक इंक्लूसिव जो एक अप्रोच होती है उसको लेके चलते हैं और बहुत धीरे से आपको सिखा देता है क्या नहीं करना है, क्या करना है. यू नो माय टेम्परामेंट. मैं तो उस टेम्परामेंट के कारण से कभी कभी मैं आई लव टू फॉल इन वी कैन से आर्गुमेंट विद समवन. उनने एक हमें बहुत ऐसे आर्गुमेंट के एक सेशन के बाद में बहुत कूलली बैठा के वो एक आज आपको एक कहानी सुनाते हैं. उन्होंने कहानी सुनाई हमें कि एक शेर में और एक चीता में झगड़ा हो रहा था. एक गधे में और चीता में झगड़ा हो रहा था. गधा बोल रहा था कि जो घास होती है वो नीली होती है और चीता बोल रहा था कि वो हरी होती है. जब सेटल नहीं हुआ तो दोनों राजा के पास गए, शेर के पास गए. शेर के सामने जब उन्होंने ये बात रखी तो शेर ने गधे से बोला हाँ नीली होती है, उसको छोड़ दिया. और चीता उसको जो चीता को उसको ने 1 महीने के लिए मोरेटोरियम लगा दिया कि 1 साल तक तुम अंदर नहीं आओगे. तब उसने चीता ने पूछा रखी शेर से कि आपने ऐसा क्यों किया है, घास तो हरी होती है. बोले हाँ घास हरी होती है लेकिन तो पनिशमेंट मिला है गधे का मुंह लगने का. तो छोटे छोटे से जो एक मैसेजेस दे के जो एक अपनी टीम को एक सबको ग्रो करना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, आगे बढ़ाना, ये काम बहुत अच्छे से प्रोफेसर सुरेश ने किया है. और एज फार एज माय एजुकेशन इज कंसर्न, my total credit goes to Professor Dikshit from Saga University. So for me, there as role models as a teacher and as a mentor, I have two. Means you have to be where you require to be be a teacher and mentor, and where you require to be leader, prove yourself as a true leader for your team, effectively Yes. running for a team. Yes. Definitely, sir. Yesterday when we were talking, team is a simple reflection of the leadership. Yes, Yes. definitely, sir. Sir, in pharmaceutical field, maximum students, again, I will say, sir, please excuse me, but they are not aware about the digital learning. Many of them don't have the processors and laptop because they were not sure, because they were using these all things in their institutes. They were not sure that they will be locked down at the home and they will not be having these all things. So it's a time and it's a need of our to exactly adopt digital modules, learning modules. So means how can you guide them to be more digital? What many of them are thinking how to adopt digital systems, and many of them have already adopted, I agree that, but then your directives and your focus about it. So today I'm not going to snub you for your wrong question. Okay, sir. Because two things are very common. Whosoever is coming to study pharmacy, they have a good motorcycle and good smartphone. Yes, sir. So how you can say they are not aware? Means they This is have not to utilize this this is not their smartphone. priority. This is not their priority. So one teacher was asking, students are coming in the colleges with the mobile phone. So I said, you start teaching on mobile phone. What's wrong with it? So teachers, this is the beauty of this time. Students are more knowledgeable than the teachers. So you Yes. cannot question the competence of teachers. And if you allow me, I quote one example here. When I was interviewed as a principal, and I was quite young, 28 years, so vice chancellor denied to take the admission interview because he said he is too young to be appointed as a principal. Finally, it was held that since we have to conduct the meeting, so we'll complete the meeting and we'll recommend that there is nobody who are found suitable. After half an hour, he asked me one question. What do you think about student problem? So I was quite young. हमें बहुत जोर से हंसी आई. हमने बोला, sir, I never considered student as a problem. They are solutions. Because of the students, we all exist. It means that you are vice chancellor just because students are existing.
So students are Yes. not a problem, they are solutions. And students are solutions. Students are the best teacher to the teachers. Yes. They are competent. You have asked wrong question. They are smart people. They are well acquainted. We can say familiar with all the platforms. One thing we have to motivate them, and they are now 100% attendance. I have seen the record of few universities where online attendance is more than 90-95% in each and every case. And connectivity is not a problem. Whatever teachers are doing, they are taking online classes. Wherever it's not possible, they are uploading their lectures. So wherever there is a connectivity, they are downloading the lectures and they are attending. So it's very great that they are adopting themselves like anything. And one more example I can give. You're talking about the quality of the students. So I think it's not a right question. Pharmacy Council of India given us an opportunity to visit England to study the pharma profession in UK. And for your surprise, we were visiting the biggest hospital of London. This is Royal Free Hospital, if I can recall correct. And doctors were waiting to go for round to join the pharmacist. They were not going around because pharmacists were not there. But most important thing, 90% pharmacists from India. And out of that 90% from Gujarat. And Gujarat institutions are not teaching the rocket sciences. They're also teaching the same pharmacy. What is important? हमने उनको ये सिखा दिया कि आप कैसे सीखते रहें, जो आपके सामने चैलेंज है वो आप उसको पूरा कर सकें. लेकिन अब जो परंपरा आ गई सामने कि अब लाइफ इज लर्निंग इट्स अ गॉन केस. अब तो आपको रीलर्निंग और अनलर्निंग भी सीखना है. तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं. उन सभी को हम जिम्मेदारी है कि हम उनको मोटिवेट करें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनको प्रेज करें और दे विल अचीव एवरीथिंग. दे आर नोवेयर इंफीरियर. डेफिनेटली सर. आई वाज जस्ट आस्किंग कि उनको डिजिटलाइजेशन से कैसे हम जोड़े हैं, उनको क्या मोटिवेशन दें, लेकिन आपके वर्ड्स जो इतने मोटिवेटेड रहते हैं, डेफिनेटली वो उस पीक पे जाएंगे. वो उस टेक्नोलॉजी को टीचिंग लर्निंग में यूज नहीं कर रहे थे. लेकिन अभी के जो एक 20 साल के जो हमारे बीच में इनर्शिया था एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में और स्टूडेंट्स के बीच में कि हम फ्लिप क्लासेस, हम ब्लेंडेड लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग के लिए जो इनर्शिया था वो 15 दिन में पूरा निकल गया. 15 दिन में हमने कैसे इसको ओवरनाइट अडॉप्ट कर लिया. दिस इज द गिफ्ट ऑफ द कोविड-19. Yes. Means you have to make opportunities for yourself. Yes. Definitely. Sir, I just want to ask about training and placements. So now means in many places training and placement has not yet been started. So means students are little bit confused in that state of mind. So can you throw a light means how it will happen after COVID-19, sir? So if you compare other countries, so situation in our country is far better. दूसरे कंट्री में जहाँ पे लाखों करोड़ों जॉब जा रहे हैं उतनी प्रॉब्लम हमारे पास में नहीं है. और मैं उनसे पुनः अपील करूंगा कि हमें जो नेशनल एडवाइजरीज को फॉलो करना है और आपके यदि प्लेसमेंट हो गए हैं, आप यू वेटिंग टू ज्वाइन, आप अपना सीखना शुरू कर दें. और यदि आपको वेट करना है कुछ समय बाद आपको मिलता है तो उसमें आपको जो भी आपको शार्पनिंग करना है अपने स्किल्स में उसको कर लें. एडिशनल आपको स्किल सेट आप सीख लें. कुछ यूनिवर्सिटी जो हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी है और वो अभी आपको फ्री ऑफ कास्ट ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं. तो जब सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे जो लीडर है, नेशनल लीडर है नरेंद्र मोदी जी ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी यही बोला है कि हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी है जीवन, मानव जीवन. तो सबसे पहले हम सेफ रहें और सेफ रहते हुए हम अपने स्किल सेट को, अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाते रहें और उसके बाद में जब हम प्रोफेशन शुरू करेंगे तो हम दोहरी गति से एक डबल स्पीड से उसको कर पाएंगे. जहां तक रही बात जो इनको कंप्लीशन कैसे होगा, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली ऐसी काउंसिल है जिसने प्रोएक्टिवली अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है. एंड व्हाट एवर रिक्वायर्ड वन टाइम रिलीफ वी आर रेडी टू गिव. एंड हम लोगों ने उसमें ये भी रिकमेंड किया है कि बी फॉर्म 4th ईयर और एम फॉर्म फाइनल के बच्चों को हम प्राथमिकता पे उनका कोर्स कंप्लीशन इंश्योर करेंगे. और इस तरह कोई भी हार्डशिप आती है, अभी वी आर नॉट श्योर कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड
council is quite capable and alert to take befitting decisions. यस सर, डेफिनेटली सर। सर, अब थोड़ा-सा मैं आपसे आपकी हॉबीज़ के बारे में जानना चाहूँगी सर। सर प्लीज़ आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएँगे? व्हाट इज़ योर फेवरेट पास टाइम हॉबीज़? व्हाट यू मेरी लाइक टू डू? मेरी शुरू से हॉबी केवल खेल से रही है, खेल को देखना, खेलना खास कर रही है। और उम्र के साथ में खेलना कम होता गया, देखना और पढ़ना खेल के बारे में चलता रहा, साथ में रीडिंग हमारी पास टाइम है। तो जितना जितना खेल कम होता गया, उतना अध्यात्म की रीडिंग बढ़ती गई। तो ये हमारा पास टाइम है। आप लोगों को थोड़ा ऑब्सोलीट लगेगा, लेकिन हम थोड़े से अभी एक 55 प्लस लोगों में कि इसमें जमात में आ गए हैं, तो उस तरह के शौक पालना शुरू कर दिए हैं। तो मैं पढ़ने का शौक है, उसमें जो रुचि रुचि जो है, अपना जो इंटरेस्ट है, वो टुवर्ड्स रिलीजन एंड से अध्यात्म की तरफ झुका हुआ हमारा, ये हमारा पास टाइम है। और उसके अलावा जब मैं अपने मित्रों से बात करना, उनसे मिलना और उनके साथ समय पास करना भी अपना अपना समय, ये भी मेरी एक हॉबी है। यस सर। आपने बोला एब्सोल्यूट लगेगा, एब्सोल्यूट नहीं लगेगा सर, क्योंकि हॉबी रीडिंग तो डेफिनेटली डेफिनेटली रीडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर टेस्ट लाइफ। टेस्ट हमारा जो टुवर्ड्स मतलब रिलीजन है या अध्यात्म की तरफ आता है, वो बाय डिफॉल्ट आता है इस समय। तो वो उस समय जी, इंटरेस्ट हमारा। जी सर। Now, sir, I just want to ask कि पूरा world है, they are moving toward the prominence of pharmaceutical field and they are feeling it's important whether they are as a pharmacist or they are pharma manufacturers है, हम जानते भी हैं जैसे अभी हम जो as a pharma manufacturer बहुत ज़्यादा supply कर पा रहे हैं throughout the world they are asking India to supply. So आप क्या फील करते हैं सर कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग शुड बी मोर गिवन टू फार्मासिस्ट? क्या हम उसको और दें जो इस पैंडेमिक सिचुएशन में ऑल्दो दे आर डूइंग देयर बेस्ट बट और कोई ट्रेनिंग हम इनकलकेट कर सकते हैं ताकि वो बेस्ट दे पाएँ सर? दे आर डूइंग देयर लेवल बेस्ट। क्योंकि हमने बताया कि अपने पास जो मैंडेट दिया था कि हम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट सिनेरियो को हम कैटर कर रहे थे। अभी जो हमारे पास में जो एक आया, जब से हमने अपना 95 के बाद में हमने जो ट्रिप्स के सिग्नेटरी बने हैं, 70 में हम जो एज ए कंट्री हमने अडॉप्ट किया था कि हम बात करेंगे कि हम केवल प्रोसेस को पेटेंट करेंगे, है जी, ना। तो उसके लिए हमें जरूरत थी कि हमें अवेलेबिलिटी करानी थी और अफोर्डेबल बनाना था। लेकिन जब हमने इसको समझ गए कि हमने सफिशिएंट सेल्फ सफिशिएंट हो गए, तो 95 में हमने ट्रिप्स को सिग्नेटरी बने, 2005 में फुल सिग्नेटरी बने। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा एएनडी आउट ऑफ अमेरिका इंडिया से सबमिट हुए हैं। सबसे ज्यादा यूएस एफडीए अमेरिका के बाद में यहां से हुए हैं। तो व्हाट एवर रिक्वायर्ड इन सोसाइटी, वी आर क्वाइट कैपेबल और हम ये कर पाएंगे। हमारा अकेला ये कहना है कि जो हमारी जो जिम्मेदारी अभी आई है, हमें स्टूडेंट्स को इस तरह से तैयार करना है कि वो सोसाइटी के ऐसे प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकें जो उनको पता नहीं है, सोसाइटी को नहीं पता है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उनको ऐसे टूल्स लेके यूज करना, उसको ठीक करना है जो इन्वेंट नहीं हुए। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर। आप समझ सकते हैं कि हमें ऐसे ग्रेजुएट पैदा करना है कि दोज हु कैन टैकल द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी नॉट नोन टू द सोसाइटी, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ द टूल्स एंड टेक्निक्स नॉट येट इन्वेंटेड। इट मींस हमें उनको लर्निंग के लिए इतना अडॉप्टिव बना के भेजना है कि वो जब उनको बेसिक नॉलेज के साथ में वो अपना पूरा पढ़ लें, हर चीज उनको आती है, दे आर मास्टर, दे आर जैक ऑफ ऑल। और जब जरूरत पड़ती है तो वो फैकल्टी को वो अपना कल्टीवेट करते हैं और अपने डिलीवर करते हैं। तो हमारा जो कोर्स कैरिकुलम है, इन सब चीजों के साथ में हम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। और हमें कॉन्फिडेंस सिखाने वाले समय में हम बहुत जल्दी नए इनोवेशन और इन्वेंशन पे भी जाएंगे। और एक जमाने में भी बात चल रही थी कि कुछ लोग जो नेगेटिव फीलिंग के लोग होते हैं कि हमारा फार्मेसी प्रोफेशन चौराहे पे खड़ा है, जॉब्स नहीं है। अब आप देखिए कि हमारी जो असेट इस समय है, वो हमारा ट्रेंड मैन पावर है। ये ट्रेंड मैन पावर हमारा वर्ल्ड के सारे बिजनेस को अट्रैक्ट करेगा, whether you say engineering or pharmacy. We have already a big lot of trained manpower, skilled manpower. तो उसके लिए इस इंडस्ट्री जो वर्ल्ड में हम जो लीडर बनेंगे इकोनॉमी में, वो इसी कारण से बनेंगे कि हमारे पास में ट्रेंड मैन पावर है और उसमें इतने कॉलेजेस और इतने जो है, हमें आने वाले समय में ये भी कम लगेंगे, हमें और स्पीड बढ़ाना पड़ेगी। श्योर सर। सर अब मैं थोड़ा-सा आपके चाइल्डहुड डेज़ के बारे में जानना चाहती हूँ सर, कि आपकी फैमिली और चाइल्डहुड डेज़ के बारे में लिटिल बिट आई एम पर्सनल बट आई जस्ट वांट
to know, so that viewers can know about your upbringing and that sort of thing? Let me begin with my family. I'm whosoever know me knows my wife also. Professor Swarnalata Saraf is my wife, and whatever I small I could accomplish, credit goes to her. She's always with me to achieve everything, and I'm looking forward for cooperation in this we can say life journey. मेरे दोनों बच्चे मेरे अमेरिका में हैं, एमएस करने के बाद वहां पे हैं, और मैं सागर की एक 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 प्रतिष्ठित परिवार को बिलोंग करता हूँ। ग्रैंडफादर एक बहुत बड़े वकील हुआ करते थे सागर में, और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन उस जमाने में उनकी थी, और फादर हमारे एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर एंड हेड ऑफ रिटायर हुए, वो भी एक अंतरराष्ट्रीय मानव शास्त्री थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। और उस एक जो प्रेशर परिवार का रहा कि उस परिवार का जो यश है उसको तो कभी नहीं पा पाएंगे, लेकिन उसको कम नहीं होने दे, इस प्रेशर में लाइफ में काम करते रहते हैं। ये पूरा हिस्ट्री है। बिल्कुल सर, वो तो कम नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ही है सर। जी नहीं sir, basically everyone has faith and belief about the healthcare profession, and government has working for the pandemic solution and prosperity. Everyone is moving in the future, but they are thinking that after the end of this COVID-19, what will be their first step? And many of them are little bit afraid that they will go back many steps back in their career, sir. Do you feel like this, sir? Or you Nothing can like motivate them? शाम का जब सूरज ढलता है तो एक एश्योरेंस देके जाता है कि सुबह हम फिर से उगेंगे, नई रोशनी के साथ उगेंगे, ज्यादा शक्ति के साथ में, एनर्जी के साथ उगेंगे। तो दिस इज द मैसेज, नीड नॉट टू वरी, बिकॉज नोबडी हैज सीन द फ्यूचर। लेकिन एक चीज हमेशा देखी गई है कि जब भी इस तरह की कंडीशन आती है, पूरा समाज में एक माइलस्टोन होता है और समाज पूरा बदल जाता है, और उन सब गेनर होते हैं। केवल आपको एफर्ट्स करना जरूरी है। हम ये नहीं कहते रहे कि हम बड़े सक्सेस, हमारा क्या होगा, हम खड़े रहें। आप किसी भी दिशा में चल पड़े, समय की सुंदरता है, आपके लिए तरक्की मिलेगी, आपको उन्नति मिलेगी, लेकिन केवल खड़े होकर डिस्कशन करने से कुछ नहीं मिलेगा। हम एक प्रोफेसर के सुपुत्र हैं, लेकिन हम माँ की बात बहुत याद रहती है। तो माँ कहती थी, बेटा दुनिया में कुछ लोग करके पछताते हैं, कुछ बिना करे पछताते हैं, तो करके पछताना। तो मैं सभी को ये बोलता हूँ, सब करके पछताएं, सब काम करें, और they will achieve their goal. Means we'll definitely redefine our careers and reach to a specific height, sir. Yes. Sure, sir. Sir, basically I just want to know about what is the anticipation of pharmaceutical industries from pharmaceutical institutes. Many times this question is being a discussion among many platforms, that what we should instill in the fresh breeds, what a pharmaceutical industry is anticipating from new pharma generations. Very honestly, if I say, there is a reduction of job position in the industry. Okay. There is a need to have some better skill set if you're looking aiming for the industry. और इस सब सारी चीजों में यह है कि जो लोग कहते हैं कि एकेडमिया और इंडस्ट्री में जो एक गैप है, ये हमेशा रहेगा। क्योंकि आप ये बात कर दें कि आप जितनी वर्ल्ड में कहीं भी दो इंडस्ट्री आपको एक से नहीं मिलेगी। यदि कोई एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक इंडस्ट्री को एम करके टीचिंग भी करती है, तो वो सबको एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते। ऐसे बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर वो इंडस्ट्री को चलाती है, उनको 100% एब्जॉर्ब करती है। बाकी जगह पे एक ओपन एंडेड टीचिंग लर्निंग होती है, इवन विद इन द इंडस्ट्री। उसकी जो हाफ लाइफ है, जो टेक्नोलॉजी की, इट्स वेरी वेरी स्मॉल। तो उस समय को देखते हुए हमें केवल ये कि हम कितना एडॉप्टिव है। तो आने वाले समय में जो इनको इंडस्ट्री को ये है कि हमें जो आर्ट सिखा के, हमने दो बार पहले बोला है कि हम नए चैलेंजेस के लिए कैसे अडॉप्ट कर सकें, उनके लिए हम कैसे सॉल्यूशन दे सकें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है कि हम उन बच्चों को ये सिखा सकें कि जो भी चैलेंज आए, आप पुनः लौट के, आपको एवरीथिंग इज अवेलेबल इन अबंडेंस, वेदर इज ऑनलाइन मीडिया, गूगल, एवरीथिंग। सो यू हैव टू लर्न, यू हैव टू शार्पन योर स्किल, एंड अगेन यू हैव टू जस्टिफाई योर एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। अभी एक जो सर्वे मैकेंजी का आया था,
उसने ओके बोला सर। था कि एकेडमिक इंडस्ट्री का जो गैप है इसके बारे में भूल जाइए आप। एग्जिस्टिंग जो जॉब है उसमें से 70% लोगों के पास में रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं है। इट मींस दे आर आल्सो ऑब्सोलीट। तो जब हम बात करते हैं जो नए लोग हैं वो यही लेके जाएं कि हमें नई चीजें सीखना है, सीखते रहना है, और पुराना भूल के नई चीजों के लिए फिर से अपने आप को प्रस्तुत करना है कि हम सीख के अपने आप को रिलेवेंट। वो समय गया। इवन हम टीचर्स के लिए बोलेंगे कि आप एक, अब जब इंटरनल, अब आप इंटरनेट पे ऑनलाइन क्लासेस में जा रहे हैं, आप कोई अपना लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, आप अपना कोई एक पावर पॉइंट अपलोड कर रहे हैं, तो वो भी प्लेगरिज्म में जाएगा। तो हम सभी अब एक ग्लास हाउस में आ गए हैं। ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस का एक मतलब एकेडमिक एनवायरनमेंट की एक रचना हो रही है, शुरुआत हो रही है, कि जहां पे हम देखेंगे कि कोई दीवारें नहीं है, दीवारें हटा दी गई है, हायरार्की खत्म कर दी गई है। अकेले टीचर्स की जरूरत नहीं है, अब यहाँ जरूरत है मेंटर की। एक ऐसे ऐसे ओके। पर्सन की जरूरत है जो अकेला क्लासरूम टीचिंग नहीं कर सके, क्योंकि जो जो मटेरियल है दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल और एबंडेंस में अवेलेबल है, लेकिन वो कैसे मोटिवेट कर सके, उनको कैसे मेंटर कर सके, ये इस तरह के टीचर्स की जरूरत है। और इस तरह के टीचर्स जाते हैं और उन बच्चों को बताते हैं, तो हमें आने वाली प्रॉब्लम के लिए उनके पास में इतना स्किल सेट रहे कि हम उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सीखने के लिए हम सक्षम रहे। हमें आर्ट ऑफ लर्निंग सीख के जाना है। जो आप फार्मेसी पढ़ के जा रहे हैं, ये फार्मेसी सफिशिएंट नहीं है, हमें आर्ट ऑफ लर्निंग सीखना है, और बेसिक्स ऑफ फार्मेसी, डायमेंशंस, ये सब तो हम सीख ही जाते हैं, तो जी। हम रिलेवेंट रहेंगे। मीन्स मैं आपकी बात से एक बार व्यूअर्स के लिए और कंक्लूड करना चाहूंगी कि सर हमें अपने स्किल्स को रेगुलरली अपग्रेड करना है फॉर पुराने डेवलपमेंट स्किल को एंड। भूलना भी है। जी जी सर, बिल्कुल वो अपडेट अनलर्निंग, करना है एंड दैट शुड बी केप्ट। वी जी। आर लिविंग इन एरा ऑफ इंडस्ट्री 4.0। और ये यस इंडस्ट्री सर। 4.0 की ये सुंदरता है कि आपको हर दिन पुराना भूल के नए सिरे से शुरू करना है। जी। तो उसके लिए यू आर सपोज टू बी ऑन टोज एवरी टाइम। यस, डेफिनेटली सर। सर मैं पूछना चाहूंगी आपसे सर कि आपके कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स हैं एज ए प्रिंसिपल सर। आप प्रिंसिपल रहे हैं, बहुत सारी हायर पोजीशंस पे रहे हैं सर, तो आपके मैं कोई। नहीं कर पाऊंगा कि मैं एक सुना के एक बता के तो उसको मैं स्किप करता हूँ। लेकिन अगेन हमारी जो एंट्री होती है लाइक फार्मेसी में, ऐसा फॉर्म इसमें कॉलेज में भी हमारी एंट्री ऐसी हुई कि मैं उदयपुर में काम करता था। अचानक एक हमें सचिन ने बुलाया कि आप पेजर से कि आप इंदौर में आके मिलिए और आपको वहां पे एज ए टीचर ज्वाइन करना है मंदसौर में। तो मैं तैयार नहीं था एज यूजुअल कि हम आई वाज इन कंफर्ट जोन, लेकिन बताया कि नहीं आप करना है। देन माय प्रोफेसर कॉल्ड मी योर ज्वाइन। और ज्वाइन करने का एक कारण था कि वन ऑफ माय सीनियर टीचर्स प्रोफेसर जेजी अस्थाना वाज ज्वाइनिंग एज ए प्रिंसिपल। तो मैं वो हमसे बोला कि तुम काम करना, मैं रहूंगा। आई वाज हैप्पी कि एक अपना गार्जियन मिलेगा यंग एज में 27 28 में, तो हमने कहा ज्वाइन कर लिया। जिस दिन मैंने फाइनली ज्वाइन किया, प्रोफेसर अस्थाना कॉल्ड मी एंड ही सेड, "Shailendra, finally I decided I am not coming." So overnight, after 3 days of astute professorship, I joined as a principal, in charge principal. तो एक एक्सपीरियंस हमारे कैसे रहे, इसके लिए एक छोटी सी बहुत अच्छी कहानी बताते हैं आपको। यस एक सर। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर से पूछा गया कि आपने यहाँ तक कैसे पहुंच गया, तो उन्होंने अपना स्केच बताया कि मैं एक जगह खड़ा था और वो और एक घटना देख रहा था कि एक गधा खड़ा था और एक छोटा बच्चा था। बच्चा कुछ नहीं जानता था, उसने गधे का पैर, उसको पूंछ को पकड़ लिया। पूंछ छुटाने के लिए गधे ने पैर मारना शुरू किया। बच्चे ने पैर, उसको अपने पैरों को से गधे के पैरों के ऊपर टिका लिया। अब गधा भाग रहा था अपनी पूंछ छुटाने के लिए, और वो बच्चा पूंछ नहीं छूट रहा था कि गिर नहीं जाए। तो इस तरह से जिंदगी निकल जाती है कि आपने एक जिम्मेदारी ले ली, अब आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और आपको छोड़ने भी नहीं दिया रहा है। तो इस तरह से जिम्मेदारी, काफी एक्सपीरियंसेस हैं। आई वाज वर्किंग देयर एज ए प्रिंसिपल, और एक छोटी जगह थी, ऐसी जगह थी एज ए प्रिंसिपल जहाँ पे एक भी होटल नहीं हुआ करता था। पैसा ज्यादा होने के बाद से वहाँ क्रिमिनल एरिया था। हमारे बच्चों को ऐसा टारगेट थे उनको क्रिमिनलाइजेशन करने के लिए। तो मैंने एक टास्क लिया कि किसी बच्चे को क्रिमिनल नहीं होने देंगे, और 7 8 सालों में मैंने इन बच्चों के साथ में जो भी बिहेव किया हो, लेकिन एक भी ऐसा केस नहीं हुआ कि मेरे 8 सालों में रहते हुए कि कुछ ऐसा हुआ हो।
और मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूँ कि तुम जैसे बच्चे हमारे साथ में जो अपने अपने लेडर के टॉप पे बैठे हैं। इसके अलावा एक ऐसी इंस्टीट्यूशन हमने और स्वर्णलता ने मिलकर बनाई जो अपने 25 साल पूरे कर लिए। तो एक आदमी को एक बड़ा संतुष्टि होती है कि उसके लाइफ टाइम में उसके द्वारा बनाई हुई एक संस्था एक अपना पीक पे पहुंच जाती है। और पूरी क्रेडिट मैं देता हूँ वहां के माननीय नरेंद्र नाटा जी को, नाटा परिवार को, कि उन्होंने उतनी छोटी उम्र में हम पर विश्वास किया और उस कॉलेज की जिम्मेदारी दी। और मैं ये मान के कि संस्था हमेशा व्यक्ति से बड़ी होती है, हम लोग काम करते रहे और आज बहुत गौरवान्वित होते हैं कि एक बहुत अच्छी संस्था, कि हम तो टाइम एक लिमिटेड टाइम के लिए पृथ्वी पे आते हैं, लेकिन संस्थाएं बनी रहती हैं। और जो संस्था याद करेगा तो कम से कम हम लोग को तो सौभाग्य मिलेगा कि लोग हम लोग को भी याद करेंगे। तो ऐसी डेफिनेटली। यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बहुत सी यादें हैं, लेकिन उसके लिए कभी अलग प्लेटफॉर्म पे अलग बात करेंगे। जी सर, जी बिल्कुल सर। सर मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी सर, आपका एक्सपीरियंस एज ए वाइस प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सर, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? काफी लंबे समय से और आपके बनने के हाँ, मैं बाद बहुत भी सारी। लंबे समय से हूँ और मैं नटशेल में तो यही बोलूंगा कि मतलब वॉट एवर आई हैव लर्न जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोफेसर सुरेश की ही हैज लॉट ऑफ फेथ इन मी। और जब भी कोई टास्क आती है तो हमें भेज देते हैं, तो जब भेजा जाता है तो बड़ी नाराजगी होती है कि आप बड़े बड़े टास्क में क्यों भेज देते हो, लेकिन टास्क कंप्लीट करने के बाद में खुशी होती है कि हम कुछ और सीख के आ गए। एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, काफी एग्जाम्पल है वैसे, लेकिन एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिव्यू कमेटी थी जो रिव्यू कर रहा था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की फंक्शन के लिए। I received a call that you have to go and present the case of Pharmacy Council of India. I said simple, जाना होगा चले जाएंगे, आके जाके आ जाएंगे। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पे 17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे थे, 9 लोकसभा से थे, 8 राज्यसभा से थे। और जो एक 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 वर्ड टू वर्ड आपका जो स्टेटमेंट होता है उसके लिए आपको अंडरटेक करना पड़ता है। और उस एनवायरनमेंट में जाके जब मैं अपने पैरों को कांपते पैरों से अंदर गया, लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट साहब का जो हम पे फेथ था कि हम सही करके आएंगे, हम उसको कन्विंस करके और अपना काम करके जब 3 घंटे बाद निकले। तो ये एक वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ वर्किंग विद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया which gave lot of opportunity to interact with different high level people and personality and to learn them and improve your confidence। ऐसे काफी एक्सपीरियंस है। और एक और मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा जो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा, कि जब एमफॉर्म की बात चल रही थी कि एमफॉर्म में सीट का क्या सिस्टम रखे, मैट्रिक्स रखे, तब डिस्कशन हुआ और हम लोगों ने उसको उसको फ्लेक्सिबल रखा। क्योंकि जब उसमें हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी तो हम आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं न्यू डाटा के बेसिस पे, कि व्हेन वी हैव गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू बी ऑनेस्ट टू ऑल द इंस्टीट्यूशंस, तो 95 इंस्टीट्यूशन ने लेस देन 15 का इनटेक मांगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन था। तो ऐसे काफी एक्सपीरियंसेस जो आप सीख सकते हैं और उससे फर्दर अपने आप को एनरिच कर सकते हैं। तो काफी हमारा अच्छा पीरियड रहा और हमें ये वास्तव में एक खुशी की बात है कि जब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मा प्रोफेशन और कंट्री जब ट्रांसफॉर्म हो रही थी, उस दौरान हमें फार्मेसी काउंसिल में रहने का मिला। इसलिए मैं ईश्वर को सदैव धन्यवाद देता रहता हूँ। सर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, बीइंग ए विमेन नहीं, बट विमेन्स आर डूइंग डेफिनेटली गुड इन ऑल द एरियाज। फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हैं, मेडिसिन हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं, but still sir globally it is felt that they definitely there's a need of our that they should smash the glass ceiling. Do you feel sir, and how to empower them? ये लास्ट टाइम मैडम से भी मेरा डिस्कशन हुआ था, मैडम के वैल्यूबल इंसाइट्स हमने इसमें ऐड भी किए, लेकिन फिर सर मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि इस चीज में हम फर्दर डायरेक्टिव्स कैसे बढ़ाएं? ये वर्ल्ड वाइड है कि यूनेस्को का जो एक चार्टर आया है 17 पॉइंट चार्टर, उसने इसको 100% इसको हाईलाइट किया है कि लेडीज आर डूइंग लॉट ऑफ गुड, लेकिन हायर पोजीशन में देयर प्रेजेंस इज लेस देन 30%। यस। तो ये तो है, लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि महिलाओं पुरुषों को जब बराबर रूप से अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो परफॉर्मेंस उसका महिलाओं का ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि आप यदि यहाँ बैठे हैं तो कोई वुमन रिजर्वेशन से नहीं बैठे, आप बैठे अपने कॉन्फिडेंस से। आपके लिए केवल आपके पेरेंट्स ने, आपकी इंस्टीट्यूशन ने अपॉर्चुनिटी दी। तो मैं ये कह सकता हूँ अकेला कि आप ये हम सबकी जिम्मेदारी है
हम मेल है, हम फीमेल है, लेकिन हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों महिलाओं को, पुरुषों को, अपने विद्यार्थी को, छात्र छात्राओं को दें, तो वो काफी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि एक गिवन सर्कमस्टेंसेस में यदि दोनों को हम चांस देते हैं तो ग्रोथ रेट महिलाओं को ज्यादा होता है। और जहां तक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में सवाल है, मैं मजाक के मूड में बोलूंगा कि वहां पर कुछ दिनों में मेल के लिए रिजर्वेशन शुरू करना पड़ेगा। ओके। All the मेल्स के लिए। institute, more than 70-80% staff is female staff. Okay. So viewers are giving very good content. I will just specify the name of Sarvata Saraf ma'am. She has written good initiative. Now I have received a very much good information by Udayveer Singh Sara. He has written. He's a director from Hadya Institute of Pharmaceutical Information, and he is finding this talk very informative, sir. Okay. Sir, Thank you. yeah, sure, sir. So I just want to know what is your message for young generation, sir? यंग जनरेशन, Yes, sir. वैसे तो मैं अपने आप को भी यंग मानता हूं, तो यंग जनरेशन को मैं क्या मैसेज दूं? लेकिन फिर Upcoming भी generation. लाइफ इज Upcoming थ्राउट generation. लर्निंग, लाइफ इज थ्राउट लर्निंग, वन मैसेज नंबर वन। एक चीज और, मैं एक साउथ अफ्रीका में एक और एक छोटी सी कहानी चलती है कि जब सुबह सूरज उगता है तो गजल, वहां के जो हिरन होता है, हिरण के झुंड में ये एक बात होती है कि हमें सबसे पीछे दौड़ने वाले हिरण से आगे दौड़ना है। और जब सुबह रोशनी खुलने पे और रोशनी होने पे जब शेर दौड़ते हैं, तो शेरों के पास में ये एक बहुत टास्क होता है कि सबसे तेज दौड़ने वाले शेर से हम आगे दौड़ दौड़ जाएं। क्योंकि शेर सबसे आगे नहीं दौड़ेगा, भूखा रह जाएगा। और यदि हिरण सबसे पीछे दौड़ेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। Yes, मैसेज ये है कि सब दौड़ रहे हैं, कोई जान बचाने के लिए, कोई पेट भरने के लिए। जब दौड़ना आवश्यक है तो सार्थकता से जोड़े। yes, आप काम करते रहें, समय का अच्छा उपयोग करते रहें, और अच्छे स्किल्स के साथ में हर दिन अपने स्किल्स की शार्पनिंग करते रहें। लेकिन इस सब के बाद में हम और आप सबके लिए एक समान रूप से भगवान ने दिया है, वो दिया है 24 आवर्स। yes. इस सब में इन 24 घंटों को जो जितने स्मार्टली, इंटेलिजेंटली, रिलीजियसली यूज करेगा, उसको उसी के प्रोपोर्शन में उसको आपका पोजीशन, सेटिस्फैक्शन एंड रिटर्न्स मिलेंगे। Sir, what is your vision for pharmacy profession, sir? आप फार्मेसी प्रोफेशन को कहाँ देखना चाहते हैं, सर? Pharmacy profession worldwide is on top, but within the profession, I want to see India on top, and I'm sure in my lifetime I'll be able to see India on top in the pharmaceutical profession. सर लिटिल जस्ट आई वांट टू आस्क यू सर, व्हाट डू यू फील कि अभी आपके करियर में कुछ और बचा है, सर? आपकी कोई एंटिसिपेटरी विशेस हैं इन द फॉर द फ्यूचर? व्हाट इज योर ये विजन? एनीथिंग? एक जो अच्छा आदमी बनने की जो एक जो वो होती है, एक चाहत होती है, वो लाइफ टाइम रहती है, और उसमें मैं शुरू से काम करता रहता हूँ। बाकी जो डिफरेंट पोजीशंस मिली, ये सब तो मिलती हैं, लेकिन आप आज से अच्छा आदमी कल बन जाए, ये आजीवन में करता रहूंगा। जी, बिल्कुल सर। मैं सर आपके फ्रेंड्स के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। फार्मा प्रोफेशन में जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके लिए कोई स्टेटमेंट्स हैं, उनके लिए आप कुछ बोलना चाहते हैं डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड से, तो प्लीज सर उसको एलॉबरेट कीजिए सर। हमारे फ्रेंड्स के लिए यह है कि जो हमारा जो फ्रेंड्स हैं, उनकी जो पुराने दोस्त हैं, वो लगभग 50 साल हम लोग मनाने वाले हैं अभी। इसी साल हम लोग मनाएंगे, 50 साल हमारी दोस्ती हो जाएगी। और बहुत खुशी के साथ मैं ये कह पा रहा हूँ कि मैं अपने सारे स्कूल डेज के दोस्तों से आज भी जुड़ा हूँ। सारे मैं अपने कॉलेज डेज के फ्रेंड से जुड़ा हूँ, और प्रोफेशन में जिससे एक बार जुड़ा हूँ, कोशिश करता हूँ कि उससे जुड़ा रहूं। और ईश्वर हमारे लिए सहायता करता है कि हम उससे जुड़े रहते हैं। तो बस यही है कि रिमेन कनेक्टेड। जी, बिल्कुल सर। जब भी आपको कॉल करते हैं तो सबसे प्रिविलेज्ड वाली बात होती है सर कि आप नाम से हमको बोलते हैं, तो हम लोग को फील होता है कि यस यस सर के पास नंबर सेव होगा, नहीं तो सर आवाज से पहचान रहे हैं सर। ये जो फीलिंग है ना, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ये हम फील करते हैं।
सर एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, आपके करियर में कभी सर आपको इंस्टेबिलिटी फील हुई है या इनसिक्योरिटी फील हुई है प्राइवेट जॉब्स को रिलेटेड करते हुए? कोई ऐसी सिचुएशन है सर, या आपने ऑन द होल पूरी सोसाइटी में ऐसी कोई चीज देखी है नियर बाय फेलोअर्स जो फार्मेसी फेलोअर्स हैं उनके लिए सर? हमारा काम ही खत्म नहीं हो पाता तो इनकी सिक्योरिटी कैसे होगी? लोगों के पास में इस सब चीजों को सोचने के समय कैसे मिलता है, ये थोड़ा सा एक शोध का विषय है। ऐसे एक बार लाइव मूवमेंट में हम और डॉक्टर सुरेश बात कर रहे थे कि आप अपने आप किसी ने बोला उनसे कि आप दुश्मनी रखते हो, तो उन्होंने बहुत सिंपल सा आंसर दिया कि हमें दोस्तों के लिए समय देने के लिए नहीं, दुश्मनी को लोग क्या देंगे। तो काम करने के लिए इतना समय की इनसिक्योरिटी सब चीजें, कभी इसका मौका नहीं मिला। तो 24 आवर्स वी आर वर्किंग, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा काम करने का मौका मिलता रहे। यही सबसे बड़ी एनर्जी भी है, टॉनिक भी है, और लाइफ का एम भी है। सर अब सारे व्यूअर्स डेफिनेटली ये तो जानना चाहेंगे सर कि व्हाट इज द करंट इनिशिएटिव्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एंड प्रोफेशनल्स, ऑल्दो दे आर डूइंग देयर बेस्ट, बट स्टिल व्हाट आर द करंट नीड्स? करंट में कि एक तो हम लोग का जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को पहले हम लोग रिफॉर्म किया है। इट वाज एज ओल्ड जो सिस्टम था, उससे हम लोग ऑनलाइन हो गए पूरा। और उस सब के बाद में हमारे पास में जो एक यूज नंबर है कि हम बताएं आपको कि 80s में 37 इंस्टीट्यूशंस थे, नाउ 5000 प्लस इंस्टीट्यूशन हम लोग उनको रेगुलेट कर रहे हैं। पहले हमारे बी फॉर्म एम फॉर्म के रेगुलेशंस नहीं थे, उनको हम लोग कर रहे हैं, रेगुलेशंस लेके आए हैं। लेकिन इसके साथ भी जो हमारे पास और जो एडवोकेसी के हम लोग जो एरियाज हैं कि कैसे हम डिफरेंट जॉब को क्रिएट कर सकते हैं। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी है कि फार्मडीज को हॉस्पिटल में कैसे करें, फार्माकोविजिलेंस में कैसे करें, एरिया में हम जा रहे हैं। हर क्षेत्र में जहां पे फार्मेसी का प्रोस्पेक्ट हो सकता है वहां पे फार्मेसी, बिकॉज दिस मैंडेट इज गिवन बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ फार्मेसी एक्ट कि टू रेगुलेट फार्मेसी प्रोफेशन द कंट्री। तो जहां भी जरूरत होती है उसको हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और बड़ा प्रोएक्टिव होकर सोचते हैं। और जैसे अभी एक चीज आने वाली है कि आपका नए रेगुलेशंस आने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जो डिवाइसेस आने वाली है। और सबसे बड़ी जो एक और अपॉर्चुनिटी आपको बताएंगे वो है कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रेगुलेशन आया है, रेगुलेशन 2015। दिस इज फाइटो फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन। ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में एक नई क्लास जोड़ी गई है, और ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है फार्मासिस्ट को कि वो अपने इंडिजिनस नॉलेज को में कन्वर्ट करने के लिए उनको बहुत इजी सा एक मतलब एक मैकेनिज्म उससे मिला हुआ है। तो इसमें भी वो आगे बढ़ सकते हैं। ये जो मॉडल है जो 2UU करके आर्टिफिशियल को ड्रग को खिलाया, उसके बेसिस पे फाइट परफॉर्मेंस का आया है, तो वो उसको भी कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें एज ए फार्मासिस्ट वी बिलोंग्स टू ए प्रोफेशनल सब्जेक्ट, तो वी ऑल आर प्रोफेशनल। तो इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ इनटू जॉब क्रिएटर। हम छोटे छोटे से इनिशिएटिव लेके आए हम, और इस सब के साथ में जरूरी है जब हम इनोवेशन इन्वेंशन की बात करते हैं कि वी हैव टू कम आउट ऑफ द शेल, because Yes, all the pharmacists, all the persons connected with pharmacy are working, doing extraordinary good, but they are doing in isolation. The second island is missing. definitely. So this is right. Mm. The Forest Council of India is trying to provide a connect between the second islands, और जो भी समय पे आवश्यकता होती है उसके लिए काउंसिल की जो एक हमारी जो एक संरचना है अपनी फार्मेसी एक्ट, आप सभी जानते हैं, उसमें Yes, सारे फैसेट जो फार्मेसी के हैं वो प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड है। तो जो भी चैलेंज आ जाता है, जो चैलेंज आता है उसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत कम समय में बहुत डेमोक्रेटिकली और सभी के साथ में लेकर उसको पूरा कर पाते हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगा। इसके साथ भी जो एक विजन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कि वी आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द रेगुलेशन एंड वी आर ट्रांसफॉर्मिंग आवरसेल्फ। देयर मस्ट बी नो रेगुलेशन बट एक्रेडिटेशन। और इन सब के साथ में हम पर्सनली भी बिलीव करते हैं कि जो इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी है, एक्रेडिटेशन काउंसिल ऑफ फार्मेसी है, यूएस की है, इन सब बॉडी से भी इंस्टीट्यूशन एक्रेडिट कराएं, क्योंकि यदि वर्ल्ड के ट्रेंड के साथ में हमें चलना है तो हमारे लिए जो इंडस्ट्री की जो टेक्नोलॉजी है उस रेजोनेंस में हमें जाके अपनी बैंडविड्थ भी ट्यून करना पड़ेगी। तो इन सब चीजों को हम जाने, और नॉलेज हर जगह अवेलेबल है, इन सब चीजों को जाने, और इन सारी चीजों में जो भी अवेलेबल है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया
उसको एक सक्षम बॉडी की जैसे काम कर रही है, हम रहे या नहीं रहे, लेकिन काउंसिल अपने आप में इतना सक्षम है कि वो उन सब चीजों को टैकल करेगी। आने वाले समय में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया दूसरे स्टेट्स की फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, फार्मेसी काउंसिल ऑफ डिफरेंट नेशंस, उनसे भी कोलैबोरेट करेगी और उनसे भी बराबरी के संबंध से कि हमारे फॉर्म यदि उनके फॉर्म से समय आना चाहे आ सके, हम उनके यहाँ भी जा सके। तो ये सारे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। और जो आप लोगों के होते हैं तो आप फ्रीली आप काउंसिल को या बाय नेम आप लोगों को भेज सकते हैं, उसको हम लोग इनकार करते हैं, बिकॉज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक बॉडी बाय द फार्मासिस्ट ऑफ द फार्मासिस्ट फॉर द फार्मासिस्ट, so we should Yes. feel this true spirit of the constitution. We are the pharmacy professionals. Yes, sir. Under your dynamic leaderships and the dynamic leadership of Dr. B. Suresh, sir, definitely Pharmacy Council is doing a very good job, and we are expecting much more in the current and upcoming years. सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर मेरा कि जैसे आप बोथ ऑफ यू वर वर्किंग, मैडम भी वर्किंग है, आप भी वर्किंग थे, यू हैव टू very well groomed childrens. Now whether you have faced any issues to grow them when both of them were simultaneously, and सबसे अच्छी बात ये है सर कि you both of them were simultaneously grooming and being a complementary to each other. So do you faced any that sort of struggle as a parent कि उनकी ग्रूमिंग में और कुछ भी चीजों में आप लोगों को थोड़ी ट्रबल लगी, एंड दे बोथ आर बीन सेटल्ड इन यूएस, मींस इट्स अ गुड थिंग। सो उस चीज के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी सर कि हाउ यू मैनेज योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ एंड बोथ in a better and good competitive way, sir. The credit goes to Mrs. Saraf. If you want some technical know-how, better contact her. That I missed in sir last year. Definitely I I missed give it. credit to Prolata only for grooming of the children, and she's really done a lot of work for that. So means madam, you whole credit you give to madam only, sir. Absolutely, absolutely. बट सर मेरे व्यूज में फादर एंड मदर बोथ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो माइट बी जब आप हमारे लिए इतने बड़े रोल मॉडल हैं तो आप दोनों की इक्वालिटी से आपके बच्चों को जो एक वेल सेटल्ड करियर मिला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सर मैं नेक्स्ट जनरेशन के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी, जो नेक्स्ट जनरेशन फार्मेसी प्रोफेशनल्स की है वो कितना चाहते हैं कि उनके जो भी अपकमिंग जो जनरेशन आए, बच्चे आए, वो फार्मेसी प्रोफेशन को सर ज्वाइन करें, कितना परसेंटेज है उस चीज का सर? क्वेश्चन समझा नहीं आपका। सर जैसे बीइंग अ पेरेंट हम लोग फार्मेसी प्रोफेशन में हैं, तो जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी जो आने वाली है सर, आवर चिल्ड्रंस एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस, जो भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, वो कितना परसेंट फार्मेसी प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं सर? नहीं, उनका ये जो कितना परसेंट there इंटरेस्ट is है only सर? only one single equation that is known as the demand and supply. यस। So if there is demand, supply is very high. तो अभी आने वाले करीब करीब 2-3 दशक तक तो अपन देख सकते हैं कि डिमांड बहुत बढ़ने वाली है और रहेगी ये। जी, मीन्स हम परसेंटेज तो लेकिन नीड जरूरत यहाँ पर कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की है, काफी है और वो जी रहेगी। जी means we'll more quickly move towards upliftment of our profession. Sir, as you everyone knows that you are a workaholic person, you're working day and night for betterment of professions, even the people around you and student. What is your schedule during lockdown period? लॉकडाउन पीरियड में आपका क्या स्केड्यूल है जिसके कारण आपके सारे असाइनमेंट्स मींस आई एम वेरी फॉर्चुनेट फ्रॉम लास्ट 4 days I have been connecting with you, and even you want to speak to a person but you don't have time to devote because you are equally divided yourself and properly divided. So how you manage, sir? It's very difficult to be managing each and everything, sir. So can you tell me मैंने about your टाइम schedule? अच्छा यूज करने के लिए टाइम का अच्छा यूज करने की कोशिश की, और जो बहुत से पर्सनल वो पूरे एक एजेंडा हमारा था, रामचरित मानस का एक अखंड पाठ करेंगे। जी तो मैंने 10 दिन के तो उसमें पूरा कर लिया, और एवरी डे आई एम रीडिंग सम बुक्स एंड ऑल दैट।
और उसके साथ ही जो मीटिंग्स हैं, हमारे जो काउंसिल के प्रेसिडेंट है वो भी रात में 2 ढाई बजे तक काम करवाते हैं। इस लॉकडाउन में 5,000 घंटा हम लोगों ने क्लियर किए हैं। सो हम लोग वर्कहॉलिक है नहीं है, हम लोगों से काम भी इतना एक्सपेक्टेड होता है कि हम लोग काम करते रहते हैं, करना पड़ता है। तो यह एक बहुत सीधे शब्दों में को कह सकते हैं कि काम के अलावा हमें कोई काम भी नहीं है, इसलिए काम करते रहते हैं। जी, जी, बिल्कुल सर, काम के अलावा आपको कोई काम भी नहीं है। तो ये मैं बेसिकली क्रक्स लूँगी आज की कन्वर्सेशन का कि काम के अलावा कोई जी, काम भी नहीं। सर, जी। मैं फाइनली बस लास्ट थिंग आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपके जो मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वर्ड्स हैं, वो कैटेगरी वाइज़ सर चाहती हूँ। स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? सिंपली हमने सर इनको जो बोला, आप जी, तो बच्चों को बोला है कि लाइफ इज थ्रू लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग। राइट एंड एकेडमिशियंस के लिए सर? टीचर शुड हैव प्राइड टू प्राउड टू बी टीचर, यस। दैट इज इनफ। फार्मा जॉब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए सर? आई सैल्यूट एंटरप्रेन्योर्स। यस, एंटरप्रेन्योर्स को कल सैल्यूट करना है क्योंकि दे आर नॉट वर्किंग फॉर लॉस एंड प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योरशिप डजंट मीन दैट यू आर गोइंग फॉर प्रॉफिट, you are having some out of the box ideas. यस, And the biggest satisfaction in the on the earth is given by the creativity. So यस, entrepreneurs are in real sense creative men, and I urge upon those entrepreneurs to make it infectious, like COVID-19. So everybody become the entrepreneur, whether you are a teacher or you are a student or running industry, but you should have entrepreneurial skill. That is यस। the message I can say. Ki make it infectious. सर It should आई spread आई like COVID-19. Yes. I'm glad to have sir such a wonderful conversation with you. So it was a very informative session. हमने बहुत सारी चीजें सर आपसे थ्रू आउट सीखी है और सीखते रहेंगे। मैं एक चीज सर लास्ट सर प्लीज आप परमिट करें मुझे पूछने के लिए although means what is the scope of pharmacognosy in future sir being Why a you are pharmacognosist? why you are seeing pharmacognosy in isolation? No, I'm not seeing sir. I just want No. its upbringing. Why I'm saying this was the Yes, time of specialization when we are talking about 50s and 60s. yes, When it was time of 19 and 2000, the time was interdisciplinary, multidisciplinary. But in real sense, as if we're talking as of today, so this is time of anti-specialization. There is no need of any specialized, we can say, compartmentalized approach. You cannot survive in isolation. There's need to have a connect. Why there are more invention from the West? Because there is a connect with a pharmacist, with a doctor, with an engineer. So same thing is required here also. So we should not fall in love with your own baby. If I am from pharmacognosy, I will. If the moment I fall in love with baby, I'll not be able to nurture the qualities of my baby. So yes, future is very good because this pharmacognosy is based on Ayurveda. Soyam Ayurveda Saswatam Anaditvat, जिसकी ना बिगिनिंग ना एंड है, जो सनातन है। तो उसके उसके फ्यूचर के बारे में हम कौन होते हैं बात करने वाले, वो सर्वाइव करेगा। हाउ बेटर वी कैन यूटिलाइज, दैट शुड बी द क्वेश्चन, and this is utilized by one and all. If you talk about pharmacology, they are working on medicinal plant. If you talk about pharmaceutics, they are working on medicinal plant. If you're talking about chemistry, they are isolating some chemicals from the plants. So everybody is working in plants. So this is not a proprietary right of pharmacognosis only. At the same time, this is time for the pharmacognosis to come out of the shell, start working on traditional formulation and all that, and create new avenues for pharmacognosis. Last time we were uh, sent by the Pharmacy Council of India to US, और हम लोग रेडगर्स यूनिवर्सिटी में जब गए तो हम लोग वहां आंख खोल के रह गए। जिस जीएलसी को हम लोगों ने आइसोलेट ऑब्सोल्यूट मान लिया, उन्होंने उसको हाइफोनेटेड करके उसको, और वो रियल टाइम में आपकी विद इन 1 सिंगल सेकेंड वो टेम्परेचर बेस्ड आपका एसेंशियल ऑयल का फ्लेवर निकाल के देते हैं। So we have to find out our own mechanism and things. Or as far as pharmacology teaching is concerned, need not to stick to the syllabus.
Over and above the syllabus is never ever a bar, a limitation. तो कनुसी का फ्यूचर बहुत अच्छा है क्योंकि वो आयुर्वेदा से लिंक्ड है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो नॉलेज है वो सब नॉलेज को अपना दूसरों से भी डिस्कस करें और उसका अपना आउटकम के लिए कोशिश करें। सर थोड़ा सा आप मुझे स्मार्ट वर्किंग और हार्ड वर्किंग में डिफरेंशिएशन समझाएंगे सर कि क्या क्या नीड है अभी, ऑल्दो बोथ आर रिक्वायर्ड, लेकिन फिर अभी के नीड में हम जैसे देखते हैं फार्मेसी के करियर्स में भी, डिस्कशंस में भी। आपका क्वेश्चन समझ के मैं बताता हूँ आपको। एक फ्रेज है कि जो सेना शांति काल में ज्यादा पसीना बहाती है वो युद्ध में कम खून बहाते हैं। एक तो ये फ्रेज है। और एक अपन ने बचपन में एक बहुत छोटी कहानी पढ़ी थी कि एक लकड़हारा था जो 4 घंटे काम करता था और 20 पेड़ काटता था। और एक दूसरा लकड़हारा था, वो 8 घंटे काम करता था और 4 पेड़ काटता था। वो इसलिए क्योंकि जो पहला वाला लकड़हारा था वो एक दिन केवल अपने कुल्हाड़ी को शार्प करने में खर्च करता था। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग। So both are required, sir? No, smart working is required. And if smart hard worker is a smart worker also, so it must be, you cannot imagine. Every smart worker should be hard worker. But hard Means worker they, needs to be a smart worker. yes, means they will do wonders in the Yes. life if we inculcate both the things, as a Yes. smart worker and as a hard worker. Only hard worker, there is no place in the world. Yes, we have seen Because, it many times that hard worker find it difficult to find its position in the place. yes. Zigzag motion lands with nothing. Yes. Place displacement must be linear, and place displacement linear, then only you can expect growth. And this Sir, is please, for this, there's need to have a smart working. sir, please don't call me arrogant. I just want to ask you a last thing, sir. Do you feel that you are lucky enough that you have reached to this position in a profession? जितना मैं डिजर्व करता हूँ वो तो मैं 20 एक साल पहले मिल गया था, तो अब तो क्या धन्यवाद भगवान को धन्यवाद देता हूँ। Jesus. But we feel that we are very lucky to have mentor reach to certain sort of position, and definitely you are guiding us a lot. Sir, thank you very much for sparing your valuable time with us. I just want to it need to mention that for the successful convening of this event, I would like to thank Dr. Nilesh Malviya sir, Principal and Professor, Smriti College of Pharmaceutical Education, that he has And my successfully. student, you Yes, mentioned sir. my student. Yes, sir. Your student, sir. Your beloved student, sir. Yes. Definitely, I would like Thank to you, add it. Sapna. And you please convey my heartiest thanks to all the viewers, those who are online. And if Yes, there is any question, you can circulate my email ID also. I will respond whenever it is possible. I will respond to them. है ना? thank Thank you, you sir. very much. Thank you for this wonderful interaction, sir. Thank you very much, sir. God bless you. Thank you all for watching us. We'll very soon come back with the next session. Be safe, be healthy, stay at home. Thank you all.